हो सब लोग? क्लास वर्कशीट का सम नंबर 12, क्लास शीट का सम नंबर 12। उसका आई थिंक वी हैव डन टिल 20th सम तक हमने किया हुआ है। एक्सटेंड 100 रुपी नोट फॉर 10 रुपी नोट, रिवाइज किया? कंफर्टेबल? नो एंट्री था सम नंबर 20th, ट्रांजैक्शन 20 वाज अ नो एंट्री बिकॉज इट वाज नॉट अ ट्रांजैक्शन। exchange of cash against cash is not a transaction, hence no entry. बढ़े आगे? 21st, let's understand what is 21st. Okay, withdrawn goods worth 500 and cash worth 1000 for personal use. Withdrawn goods worth 500 and cash worth 1000 for personal use. ये पर्सनल यूज देख के कुछ चमकना चाहिए। Drawings. Definitely, the owner is taking the things for personal use, right? So one account is drawings. Clear with that? Owner is the receiver. Now think, ask yourself, what is he taking away from business? Cash and goods. Cash and Cash goods. and goods. तो सपोज सिर्फ कैश विड्रॉ किया होता तो क्या एंट्री बनता? Drawings account. Drawings account to cash. Debit to cash account. Drawings account debit to cash. Owner is the receiver. Cash is going out. Personal account and real account. All of you with me? What if he is withdrawing goods? Then what entry we pass? Drawings account debit. Drawings account debit to goods withdrawn for personal use. पूरा नाम बता देने का goods का. Goods withdrawn for personal use in detail. तो दोनों चीजें साथ में हो रही हैं और ड्राइंग्स कॉमन है, तो आपको क्या करना है? क्लब कर देना है इस एंट्री को। तो आपका कंबाइंड एंट्री क्या बनेगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट. अभी थिंक एंड टेल मी, is the owner withdrawing these cash and goods from bank or from business? Business में से लेके गया है प्रथम जी. Pay attention. Okay, goods are withdrawn from business, so business में से goods are going out, so credit what goes out. Is that clear? Are you listening, Pratham? Now drawings account debit to cash to goods. मुझे बताओ drawings में total amount कितना आएगा? 1,500. 1,500. to cash में कितना? How 1,000. much cash is going out of the business? 1,000. And goods में कितना? 500. 500. बराबर है? Being cash and goods withdrawn for personal use. Being cash and goods withdrawn for personal use. Now, suppose ओनर ने बिजनेस में से फर्नीचर विड्रॉ किया होता पर्सनल यूज के लिए. ओनर ने बिजनेस में से फर्नीचर विड्रॉ किया होता पर्सनल यूज के लिए. देन व्हाट एंट्री वुड हैव पास? Drawings account Drawings debit. account debit to furniture account. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. ओनर ने विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल, तो एंट्री क्या होती? तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट. कंप्यूटर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. आर यू लिसनिंग? बहुत सिंपल सा चीज है. कुछ भी लेके जा रहा है ओनर तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. ड्राइंग्स ओनर इज द रिसीवर and asset is going out, so credit what goes out. Is that clear? All of you understood? Next one, 22nd. Deposited 2,000 in bank. किसने deposit किया? Owner ने कि business ने? Business. So can you tell me, Palak, now what should be the entry? Palak? Yes. Bank.
deposited in bank. Bank account debit to cash account. Very good. Bank account debit to cash account. Bank account debit to cash account. Is that clear? Bank is the receiver, so debit the receiver, and cash is going out, so credit what goes out. Is that clear? How to identify the two accounts? याद आ रहा है? टेबल से सब किया है हमने. Bank is the receiver, पैसा जा रहा है बैंक में. Cash is going out, credit what goes out. या modern concept apply करो. Bank is asset, cash is asset. Okay, bank is increasing and cash is decreasing. So bank increase हो रहा है तो debit and cash decrease हो रहा है तो credit. So Bank- paid to bank मतलब means deposited in the bank only, no? हाँ, paid to bank का मतलब भी deposited in the bank. एक ही बात. Paid to bank का मतलब भी same. Being cash deposited with bank. Being cash deposited with bank. All of you clear? हर्ष को समझ रहा है? साहिल शाह, उर्मी खानिया. सर या सर अगर हम लोग कुछ फीस पे कर रहे हैं बैंक को, मतलब सपोज अकाउंट रखने के लिए वो जो fees अपना रहता है, बैंक चार्जेस होता है जो हम फीस पे बैंक को, दैट इज कॉल्ड बैंक तो वो चार्ज. भी बैंक चार्जेस उसमें अपना paid ही एक्सपेंस आएगा ना, पेड ही आएगा ना उसमें भी. पेड टू वो बैंक नहीं डिपॉजिट होगा. नहीं हुआ है ना. पेड टू बैंक नहीं आएगा, उसमें आएगा पेड फॉर बैंक चार्जेस. ऐसा आएगा, पेड फॉर बैंक चार्ज. तो बैंक चार्जेस इज अवर एक्सपेंस. तो बैंक एंट्री होगा इसका, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बैंक से कट जाएगा अपना पैसा. बैंक चार्जेस आप कभी भी कैश में नहीं देते. आपने देखा होगा पासबुक में बैंक डायरेक्टली काट लेता है. तो इट विल बी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. वो भी आएगा आगे, हम लोग सीखेंगे तभी. लोन रिपे किया तो लोन टू कैश अकाउंट. लोन लेते वक्त क्या एंट्री है? कैश टू लोन. कैश आया, लोन इज द गिवर. अभी रिपे किया तो उल्टा, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश. जैसे आप क्रेडिटर को पे करते हो ना, अजय को पे करते हो तो क्या होता है? अजय टू कैश. विजय को पे करते हो तो विजय टू कैश. लोन को पे किया तो अजय लोन टू कैश. विजय लोन को पे किया तो विजय लोन टू कैश. डेबिट द रिसीवर है, कैश इज गोइंग आउट. गॉट इट? नेक्स्ट वन, 23rd. अभी एकदम ध्यान से पढ़ना, बड़ा सा हिंट दिया है क्वेश्चन. withdrawn ₹1000 from bank for personal use and 500 for office use. आपने बैंक में से विड्रॉ किया है 1000 फॉर पर्सनल यूज एंड 500 फॉर ऑफिस यूज. तो पहले तो सोच के बताना, जो पैसा बैंक से पर्सनल यूज के लिए गया है उसका क्या एंट्री होना चाहिए? Drawings account debit to bank account. Drawings account debit to bank account. Agree all of you? Owner is the receiver and bank is the giver, so drawings account debit to bank account, right? Now that is 1000. What about that 500 जो बैंक से विड्रॉ किया है फॉर ऑफिस यूज? मतलब वो पैसा ऑफिस में कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. Bank account. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. किसी को लग रहा है ऑफिस यूज अकाउंट? एनीवन फील्स इट शुड बी ऑफिस यूज अकाउंट? देखो, ऑफिस यूज जैसा कोई अकाउंट नहीं होता. ऑफिस एक्सपेंस होता है, ऑफिस यूज नहीं होता. ठीक है? ऑफिस यूज का मतलब क्या होता है? ऑफिस यूज का मतलब आपने कैश निकाल के लाया बैंक. जैसे इस एंट्री में आपने बैंक में कैश डाला है, वैसे अब नेक्स्ट एंट्री में आप बैंक में से कैश निकाल के ऑफिस में ला रहे हो. ठीक है? तो दो चीजें हो रही है. एक तो हो रहा है बैंक से पैसा घर पे जा रहा है, so drawings account debit to bank. Owner is the receiver and bank is the giver. But when we introduce in bank business, so it won't be bank and capital. But is it introduced? Is the owner putting the money inside the bank or taking away from the bank? Read. Yes. He is withdrawing for personal use, right? अगर इंट्रोड्यूस किया होता तो बैंक एंड कैपिटल, विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग्स एंड बैंक. Is this clear? Owner is the receiver, debit the receiver, bank is the giver, credit the giver. And office में आ रहा है, मतलब बिजनेस में गांधी बापू आ रहे हैं, कैश आ रहा है फ्रॉम बैंक.
So bank is the giver and cash is coming inside the business. So debit what comes in. So can you combine the entry and tell me what should be the combined entry? Can you tell me what is the combined entry? Cash account debit, drawings account debit to bank. Cash account debit. Ah. Account debit. Cash Cash account debit account to bank debit, account. drawings account debit to bank account. Cash account debit, drawings account debit to bank account. प्रथम को समझ रहा है, रिची को समझ रहा है, रुचि लाथिया, are you understanding? Yes, sir. देव, निशांत, रिया, कंफर्टेबल? नाउ कैश कितना आया ऑफिस में? गांधी बापू कितना आया बिजनेस में? 500. 500 या 1000 सोचो. 500. 500. Because 1000 is costly. 500 sir, 500. 500 बिजनेस में देखो क्या हो रहा है. बिजनेस बैंक में गया, 500 रुपया निकाल के लाया. ओनर बैंक में गया, 1000 रुपया घर पे लेके गया. तो बिजनेस का क्या हो रहा है? खाली 500 आ रहा है. तो बिजनेस में कैश आ रहा है 500, घर पे जा रहा है 1000. तो टोटल कितना हुआ? 1500. तो बीइंग कैश withdrawn from bank for personal and office use. Personal and office use. Is that clear? Always remember, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, ऑफिस यूज मतलब रोकड़ा आया, गांधी बापू आ गए बिजनेस. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इज दैट क्लियर? कळलं की नाही? सबको समझा? Yes, sir. नेक्स्ट वन. रिसीव्ड फ्री सैंपल्स ऑफ 500. अभी ये चीज आपको समझनी है. जब भी आपको कोई भी चीज फ्री में मिले, ओके, free sample received, free catalogs received, free brochures received, free में कोई भी चीज आ रही है बिजनेस में, तो it will be no entry. It will be no entry. Okay? Why no entry? I'll tell you the reason also. अभी फिलहाल लिखो no entry. No exchange of money. हाँ, it is not a transaction. Receiving free samples is not a transaction. Is not a transaction. Hence no entry. Hence no entry. Okay? Receiving free samples is not a transaction. Hence. Sir. हाँ. Sir, जब भी प्रैक्टिकल बिजनेस करेंगे तभी ऐसा कुछ नहीं आएगा ना, नो एंट्री वाला. करेंगे ना, तब आएगा ना. प्रैक्टिकल बिजनेस में तुमको फ्री सैंपल आएगा तो तुम थोड़ी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे कुछ. सैंपल्स तो मिलते हैं. सर हाँ, पर उसका ऐसा लिखना पड़ेगा नो एंट्री. नहीं, हाँ मतलब हाँ ऐसा बोल रहे हो कि बुक में नो एंट्री जैसा कुछ नहीं लिखना है. नहीं नहीं, प्रैक्टिकली बुक में नो एंट्री जैसा कुछ भी नहीं लिखना. So if we get a gift like for the business, do we enter it? We don't enter that in the journal, no? गिफ्ट ओनर ला रहा है तो कैपिटल है. नहीं, बिजनेस को मिला है. बिजनेस को कुछ गिफ्ट आया तो कुछ नहीं. प्राइज मिला, अवार्ड्स मिला, नो एंट्री फॉर दैट. ओके, बिजनेस को मिलता है ना, प्राइज मिलता है ना. हाँ. बेस्ट कमर्शियल एक्टिविटी, बेस्ट एंटरप्रेन्योर, ओके, बेस्ट बिजनेस मेकिंग फास्टेस्ट प्रॉफिट, फास्टेस्ट टर्नओवर, वो सब प्राइज मिलता है. वो प्राइज का कोई एंट्री नहीं आता. प्राइज इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. फ्री में आया गिफ्ट, प्राइज, वो सब नो एंट्री. सर लेकिन अगर उसमें कैश होगा तो भी नो एंट्री. अगर आप बिजनेस में वो कैश ओनर ला रहा है, बिजनेस में वो कैश ओनर ला रहा है एज कैपिटल, तो फिर कैश टू कैपिटल. बराबर? नहीं मतलब अगर बिजनेस कुछ जीता अपने पास, जैसे प्राइजेस है और वो डायरेक्ट बिजनेस में वो कैश आया, तो बिजनेस में अगर डायरेक्ट प्राइजेस का कैश आया, उसका मतलब ये है कि ओनर वो पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है. प्राइज और वो सब ओनर को ही मिलेगा ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस दैट विल बी कैपिटल. दैट विल बी कैपिटल. अगर वो बिजनेस में रख रहा है वो पैसे, अगर वो घर पे लेके गया, पार्टी मनाने लेके गया, फिर कुछ नहीं आया, बिजनेस में एंट्री नहीं है. सर अगर फ्री सैंपल में कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ आया और हम वो यूज कर रहे हैं एज एन एसेट, तो till the time it is coming free of cost, no entry.
नो तो एंट्री। सर वो कैपिटल नहीं होगा, गिफ्ट में आया ओनर को और फिर ओनर ने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस। ओनर को गिफ्ट में आया और ओनर ने लाया बिजनेस में तो कैपिटल हो। हाँ मतलब बिजनेस के नाम पे पर अगर सपोज ऐसा आपने बोला कि ट्रांजैक्शन मिल गया कमर्शियल तो गिफ्ट ना, मिला, प्राइस डायरेक्ट मिला, तो उसमें कंप्यूटर मिला, तो अगर ओनर को मिल रहा है और ओनर इंट्रोड्यूस करके ला रहा है बिजनेस में पर्सनल आइटम को, देन इट इज कैश टू कैपिटल और कंप्यूटर टू कैपिटल और लैपटॉप टू कैपिटल। ओके, बट इफ द बिजनेस गॉट फ्री सैंपल्स, अभी देखो फ्री सैंपल्स का मतलब क्या होता है? फ्री सैंपल्स का मतलब होता है आपको अपने गुड्स बेचने हैं सबको। आप शैम्पू करो, यू आर डीलिंग इन शैम्पू। अभी शैम्पू में कोई नया ब्रांड का सैशेज आया है, जैसे क्लिनिक ऑल क्लियर एंटी हेयर फॉल का कुछ सैशेज आया है, तो आप क्या करोगे? अपने थोड़ा सेल हो बढ़े इसके लिए आप अपने कस्टमर को सैंपल्स दोगे फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप यूज करो, देखो, चेक करो, अगर आपको पसंद आए तो आगे ऑर्डर प्लेस करना। एक्सपेंस हुआ ना वो तो। हाँ, तो आप जब वो सैंपल्स देते हो तब आपका एक्सपेंस होता है, बट जो सामने वाला पार्टी रिसीव कर रहा है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, इनकम भी नहीं है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है उसके लिए चीज। आर यू गेटिंग दैट? तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिलता है ना उसको गुड्स, दैट इज नो एंट्री। तो आप रिसीव करते हो तो उसको इनकम मत दिखाना, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, व्हेन यू रिसीव, Or if these samples are business given by the company and we only pass it to the customer, फिर भी no entry ना। हाँ, आई विल कम टू दैट। देखो अभी फ्री सैंपल का पूरा स्टोरी है। वेट 1 minute, लेट मी एक्सप्लेन फुल पार्ट ऑफ फ्री सैंपल, देन यू आस्क दैट। फ्री सैंपल्स रिसीव्ड इज नो एंट्री, ठीक है? पहले सुन लो आप लोग सब अच्छे से। फ्री सैंपल आपको फ्री में आया बिजनेस में तो आपको एंट्री नहीं करनी। अभी वेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो क्या दिया है। डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ 300 एज फ्री सैंपल्स, आपने 300 रुपीज का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज सैंपल्स। नाउ व्हाई विल अ बिजनेस गिव फ्री सैंपल? एडवर्टाइजमेंट बराबर है, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सो दैट प्रमोशन हो, उसका सेल्स बढ़े, पता चले और ज्यादा सेल्स हो, तो एडवर्टाइजमेंट। तो एक अकाउंट आपका एडवर्टाइजिंग अकाउंट है। व्हाट इज द अदर अकाउंट? सी व्हाट आर यू गिविंग? Goods distributed as free. हाँ, you are not giving cash, right? You are giving free samples. तो free samples मतलब goods ही होते हैं, तो आपने free samples के फॉर्म में goods दे दिया। तो what is going out of the business? Goods, right? Now एंट्री क्या बनेगा आपका? एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स distributed as free samples account. Advertisement to goods. See, cash is not going out, goods are going out because we gave goods, so goods are going out, so credit what goes out. Okay, so advertisement account debit to goods distributed as free samples. Now how much are these worth? 300 rupees. Narration लिख दो, being goods distributed as free sample. अभी सुनो इसका मतलब, मैंने 300 रुपीज का गुड्स फ्री सैंपल में दिया, मतलब मेरे पास से तो गया, एक्सपेंस हुआ और गुड्स गया। अभी सामने वाले पार्टी को वो मिला है ना फ्री में, तो उसका इनकम होना चाहिए, फ्री में आया। लेकिन हम लोग ये इनकम रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये होता है आपके 5वें कंसेप्ट के वजह से। 5th concept, that's called concept of conservatism. That's called concept of conservatism. Okay? हमने कौन से कंसेप्ट लर्न किए याद है आपको? एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी, फिर हमने लर्न किया concept, matching concept, बराबर है, 5 कंसेप्ट। तो दिस इज द 6th one, सॉरी, दिस इज द 6th one. We have learned entity concept, going concern, accrual, matching, cost concept कल बताया था याद है? एसेट्स पे जो खरीदते हो कॉस्ट को ऐड कर देने का सब खर्चा परचेज के वक्त। और 6th concept is 7th. periodicity is a corollary of it, not a separate concept.
sixth concept will consider it to be conservatism. Okay, what is this conservatism का concept? Conservatism बोलता है कि show your expenses in advance but never show your incomes in advance. Show your expenses in advance but never show your incomes in advance. मतलब क्या? आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है, शायद होगा, पता नहीं आपको, शायद होगा, तो वो एक्सपेंस अभी दिखा दो, वो एक्सपेंस अभी बुक्स में दिखा दो, रिकॉर्ड कर लो, शो इट एज एन एक्सपेंस. ओके, अभी तक पता नहीं है, डाउटफुल, मतलब आपको फ्यूचर में देना पड़े, फ्यूचर में कोई लॉस हो, बैड डे, तो एडवांस में आप वो लॉस दिखा दोगे. इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाट इज गिवन बाय कंजर्वेटिज्म, कि शो योर लॉसेस इन एडवांस. फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला है, एडवांस में दिखाओ. लेकिन अगर कोई इनकम फ्यूचर में होने वाली है ना, तो एडवांस में नहीं दिखाते. बुक्स में हमेशा डर डर के सब कुछ रिकॉर्ड करने का, कंजर्वेटिव रहने का. अगर फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉस है तो वो एडवांस में दिखा देने रिकॉर्ड करके. बट फ्यूचर में कोई गेन होने वाले है ना, फायदा, तो वो कभी एडवांस में मत दिखाना. अपने आप जब गेन होगा तब रिकॉर्ड हो जाएगा बुक्स में. ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी. अगर कोई बड़ी कंपनी है जैसे कि रिलायंस, रिलायंस वाले को लग रहा है कि इस साल कोरोना के वजह से उसको 500 करोड़ का लॉस होने वाला है. रिलायंस वाले को मालूम है कि 500 करोड़ का लॉस होगा, तो रिलायंस वाला क्या करेगा? 2 साल के लिए रुकेगा नहीं, 1 साल के लिए रुकेगा नहीं, अभी वो रिकॉर्ड करके अगले तीसरे महीने के रिजल्ट में बता देगा कि भैया 500 रुपए का लॉस का प्रोविजन मैंने बना दिया है, ये लॉस होने वाला है फ्यूचर. भले ही बाद में वो एक्चुअल लॉस हो, तभी वापस नहीं दिखा, एडवांस में दिखा दिया है तुमने वो लॉस 500 करोड़ का. लेकिन वही उसको लगता है कि फ्यूचर में 500 करोड़ का इनकम होने वाला है, कोई डील साइन करने वाला है वो फेसबुक या गूगल के साथ इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर, जब उसको 500 करोड़ का इनकम मिलेगा रिलायंस वाले, तो वो 500 करोड़ की इनकम अभी नहीं दिखाएगा. वो कब दिखाएगा? जब एक्चुअली डील होगी, जब एक्चुअली पैसे मिलेंगे, तभी वो इनकम को रिकॉर्ड करेगा. ऐसा क्यों? ऐसा ड्यू टू ह्यूमन टेंडेंसी. आपका पेपर खराब गया है, आप घर पे जाके बोलोगे पेपर बहुत सारू गयु, मम्मी पापा एकदम मस्त गयु छे पेपर, और एग्जाम में आया कल्याण में फेल हो गए या कम मार्क्स आया, बड़े ज्यादा डंडे मिलेंगे आपको घर पे. लेकिन आप पहले ही बोल दो कि मम्मी डैडी पेपर डिफिकल्ट गया था, सबका डिफिकल्ट गया था, क्लास में स्कॉलर से स्कॉलर स्टूडेंट का भी डिफिकल्ट गया था, तो मेरा तो हालत ही खराब हो गया था पेपर. मम्मी डैडी क्या बोलेंगे? ठीक है, प्रैक्टिस कर, मेहनत कर, वगैरह वगैरह. फिर मार्क्स कम आएंगे तो डंडे मिलेंगे क्या तुमको? नहीं मिलेंगे. मिलेंगे तो भी कम मिलेंगे, इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे. बराबर है? तो दिस इज योर जनरल ह्यूमन टेंडेंसी. तो वैसे रिलायंस कंपनी के हजारों शेयर होल्डर्स होंगे, वो हजारों शेयर होल्डर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ते होंगे. तो अगर रिलायंस कंपनी एडवांस में 500 करोड़ का खर्चा दिखा देता है, तो वो लोग को इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा जब वो एक्चुअल लॉस होगा, क्योंकि वो लोग ने देख लिया है पहले कि ये 500 करोड़ का लॉस दिखा दिया उसने एडवांस में. जोर का झटका पहले ही हम लोग दे देंगे धीरे से, फिर एक्चुअल लॉस होगा तो टेंशन लेंगे नहीं, चढ़ेंगे नहीं कंपनी पे. लेकिन अगर उल्टा हुआ, अगर रिलायंस वाले ने 500 करोड़ का इनकम दिखा दिया पहले, आप ऐसे सोचो, आप रिलायंस के शेयर होल्डर हो, आप रिलायंस का रिजल्ट पढ़ रहे हो और आपने देखा कि अरे वाह 500 करोड़ की इनकम होने वाली है, चलो इसके और शेयर खरीदते हैं, मार्केट में भाव बढ़ेगा इसका. और फिर पता चला कि ये इनकम तो होगी ही नहीं, फिर पता चला इनकम तो होगी ही नहीं, या डील कैंसल हो गई, तब क्या आप खुश हो जाओगे कि आप चढ़ जाओगे कंपनी के, मुकेश अंबानी के घर पे जाके धरना दे दोगे? मुकेश अंबानी के एंटील आके बाहर धरना देके बैठ जाएंगे लोग. आपने बोला था 500 करोड़ का इनकम है और ये तो कोई इनकम हुआ नहीं है. बराबर है? तो दिस इज द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी. आप जोर का झटका पहले ही धीरे से दे दो तो पब्लिक को बाद में इतना टेंशन नहीं होता. ओके, लेकिन आप पहले अच्छा बताओ कि सब अच्छा है, हैप्पी गो लकी, और फिर उसको खराब करो तो बहुत जूते पड़ते हैं. तो अकाउंट्स में ये कंसेप्ट हमेशा फॉलो होता है, कंजर्वेटिज्म. ठीक है,
इसी बेसिस पे आपको अगर फ्री सैंपल मिले हैं तो वो आपका एक तरह का इनकम हुआ ना, फ्री में गुड्स आ गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फ्री में गुड्स मिल गए आपको, वो आपका एक तरह का इनकम हुआ, फ्री में हुआ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ये फ्री सैंपल अभी तक बेचा है? हैव यू सोल्ड दीज फ्री सैंपल्स? तो when you sell the free sample, that time you will record it as sales. When you will sell the free samples, that time you will record it as sales. मतलब for example, I am a shampoo trader. मैं shampoo का trader हूँ. I got 4-5 bottles of shampoo as free samples, and I am selling them. आगे मैं बेच रहा हूँ और पैसे ले रहा हूँ उसके, तब वो बेचूंगा, तब मेरा इनकम में गिनूंगा। जनरली कोई फ्री सैंपल बेचता नहीं है, खुद के इस्तेमाल के लिए होते हैं। बट सपोज आपने बेचा भी, तो जब आप सेल करोगे तब उसकी एंट्री आएगी, क्योंकि तब एक्चुअल इनकम जनरेट हो गई है ना। जब फ्री में आया तभी कोई रिकॉर्ड करना नहीं है उसको। क्यों नहीं करना है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि फ्री में आया हुआ है, शायद बेचो शायद ना बेचो, शायद मिले पैसा शायद ना मिले, यू आर नॉट श्योर बिकेगा कि नहीं। बात समझ में आई? तो फ्री में जब भी कोई गुड्स आता है या फ्री में कोई सैंपल्स आता है, तभी कोई एंट्री करने का कि नहीं करने का। कब होगा एंट्री? ये फ्री सैंपल अगर मैं आगे बेचता हूं, आई एम सेलिंग इट, देन मैं एंट्री कर दूंगा इनकम। बट अगर आप ये फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर ये आप फ्री सैंपल दे रहे हो किसी को, तो क्या है? इज इट योर इनकम और इट इज योर एक्सपेंस? योर एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस। कैन यू सी दैट? तो एक्सपेंस है तो दिखाने का ही, एक्सपेंस है तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करने का ही। ये तो खर्चा हो रहा है ना, ये इनकम थोड़ी है, ये तो खर्चा है। खर्चा है तो डेफिनेटली रिकॉर्ड करना है। इज दैट क्लियर? फ्री सैंपल्स गिवन इज योर एक्सपेंस। तो कंसेप्ट बैठ रहा है, कंजर्वेटिज्म समझ रहे हैं आपको? या Sir, in the accrual concept we learned that जितना एक्सपेंस इनकर हुआ है उतना ही लिखने का। तो फिर इसमें हम लोग क्या ज्यादा लिख सकते हैं? इसमें अभी आपने बोला जो कंसेप्ट, उसमें मतलब पहले से ही लिख देने का कि जो फ्यूचर में होने वाला है एक्सपेंस, पर अभी तक तो नहीं हुआ है। तो यस, वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, आपको ऐसा समझना है कि वो एक्सपेंस इसी साल का इनकर्ड है। समझ रहे हो? जो आप कंजर्वेटिज्म में एक्सपेंस दिखा रहे हो, वो ऐसे ही समझ के चलना है कि इसी साल का इनकर्ड एक्सपेंस है, नेक्स्ट ईयर का नहीं है। इसी साल का इनकर्ड एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर। एडवांस में दिखाने का मतलब यही साल का एक्सपेंस पकड़ के चलना, यही मान्यता रखने की। इज इट क्लियर? Sir, अगर if we use the free samples received by the business for personal use, then it would be drawings, right? या बट यहाँ पे एंट्री होगा ही नहीं, क्योंकि फ्री में आया था ना, और फ्री में घर पे लेके गया, तो एंट्री नहीं आएगी कुछ। सर अगर हम लोग को गुड्स फ्री सैंपल में रिसीव किया और फिर वही गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सर वो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा ट्रांजैक्शन? डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब फोकट का ही दे दिया। तुमको फ्री में आया, तुमने फ्री में दे दिया, तो नो एंट्री। तुमको फ्री में आया, फ्री में दे दिया, नो एंट्री। फ्री में आया और तुमने बेचा, पैसा लिया, कैश टू सेल्स, तो एंट्री आएगा कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इफ यू सेल देम फॉर मनी, देन यू विल हैव एन एंट्री। That time you will show it as your income. Okay? So hope this concept is clear, conservatism का। Okay, बढ़ते हैं आगे। 26th one, issued a check for neon sign board। अभी issued a check का मतलब क्या? पैसा आया कि गया? बैंक अकाउंट से गया। बैंक अकाउंट से गया। तो एक अकाउंट बैंक अकाउंट है। Why have you issued neon sign board? What is neon sign board? You know? Sir, expense. हाँ, what type of expense it is? Advertisement. Advertisement. Neon sign board is advertisement, right? Neon sign board is advertisement. Neon sign पता है ना तुमको? वो जगमग जगमग लाइटिंग वाला बोर्ड क्लास के बाहर लगा रहता है, किधर होटल के बाहर लगा रहता है, किधर स्टोर्स के बाहर। ओपन ऐसा। ओके, हाँ, ओपन क्लोज वाला मैकडॉनल्ड्स में देखा होगा। ओके, सो दिस इज नियॉन साइन एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट। तो एंट्री क्या बनेगा, मुझे सोच के बताओ अभी। विल इट बी
एडवर्टाइजमेंट टू कैश या एडवर्टाइजमेंट टू बैंक? Advertisement to bank. एडवर्टाइजमेंट टू बैंक अकाउंट. एडवर्टाइजिंग लिखो, एडवर्टाइजमेंट लिखो, एक ही बात है. एडवर्टाइजमेंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? निशिता जी को समझा? निशी, बंसी. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस टू व्हाट? बैंक अकाउंट. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इज दैट क्लियर? हमें मोरे फोरम. Advertisement to bank, how much? 1000. Being advertisement expense paid. Being advertisement expense paid. Okay? Being advertisement expense paid. Now, next one. Ajay, our debtor became insolvent. We had to receive 500 from him. कुछ बत्ती चमका? मतलब उसका लॉस हो गया. हाँ, डेटर, हाँ लाइबिलिटी नहीं बढ़ा, एसेट कम. अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है और अपने को पैसे नहीं दे पाता है, उसको क्या बोला जाता है? बैड डेट्स. एंड बैड डेट्स इज आवर गेन और लॉस? Loss. Bad debts is our loss. So I think it should be debit all expense and loss. Obviously, bad debt should be debited. To क्या? To cash ki to debt? To Ajay. It's always Ajay. Because he's an asset. He's the giver. We have to settle his account. तो decrease हो इसलिए credit आएगा. See. Remember, bad debts is a cash expense or a non-cash expense? Non-cash. देखो, आपके डेटर ने आपको पैसा नहीं दिया तो आप क्या गांव वालों को जाके पैसा दोगे? मेरे डेटर ने पैसा नहीं दिया, ये लो पैसा. You are not going to pay anyone, right? It is not a cash expense. It is a non-cash expense. It is a non-cash expense. Are you getting that? Now think and tell me, यहाँ पे कौन सा एसेट कम हुआ है? कैश कम हुआ है कि डेटर कम हुआ? डेटर कम हुआ. डेटर कम हो गया. अजय इज अवर डेटर, राइट? अभी वो कम हो गया, अभी पैसा नहीं देगा, तो डेटर बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट. मॉडर्न कंसेप्ट याद आया? बैठ रहा है दिमाग में? तो व्हाट शुड बी योर जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट्स? इट विल बी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू व्हाट? To Ajay अकाउंट, डेटर अकाउंट. ओके, ये क्रेडिट द गिवर नहीं है, इधर ट्रेडिशनल कंसेप्ट का फ्लॉ है. आपको बताया भी था एक बार पहले. एक अजय कुछ दे नहीं रहा है, फिर भी हम लोग उसको क्रेडिट देंगे टू शट हिज अकाउंट, टू क्लोज डाउन हिज अकाउंट. ओके, तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट इधर बराबर फिट नहीं होगा, मॉडर्न बराबर फिट होगा. एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट. इज दैट क्लियर? एक्सपेंस इंक्रीज सो डेबिट एंड एसेट डिक्रीज सो क्रेडिट. That is 500 rupees. Being bad debts from Ajay recorded. Being bad debts from Ajay recorded. Being bad debts from Ajay recorded. Okay. 28th वाला देखो. Vijay, our debtor, to an extent of 3,000. becomes insolvent, मतलब bankrupt. Only 30% dues are recovered. अब मुझे एक बात बोलो रुद्र, विजय से कितना पैसा लेना था? How much money were we supposed to receive from Vijay? पढ़ो. 3,000. 3,000. We were supposed to get 3,000 from Vijay, right? Yeah. Okay. He became insolvent. Only 30% of the dues recovered. मतलब कितना पैसा मिला तुमको एक्चुअली? 900,000 का 30%, which is 900 rupees. 900 रुपया ही दे पाया, तो बाकी का 2,100 क्या होगा? Bad debts. Bad debts हो गया. अभी आराम से सोचना, सब लोग सोचना और बताना मुझे, ठीक है? ऑल ऑफ यू थिंक, कम ऑन. पहले मुझे बताओ, जो पैसा आपको विजय ने दिया है,
जो 900 विजय से मिला, जो 900 विजय से मिला, you got the money. So what entry will pass? Cash account Cash debit. account. Cash account. Cash account debit to Vijay account. Vijay account. 900. All of you agree on that? पैसे आ रहा है, विजय इज द गिवर. पक्का समझ रहे हैं ये? कैश आ रहा है, विजय इज द गिवर फॉर 900. What about 2100? उसका क्या एंट्री होगा? Bad debts account. Bad debts account debit debit. to Vijay. Bad debts account debit to Vijay account. There is a common credit. Okay. Club then. Vijay account debit. Cash account Combined debit to bad debts account debit या to Vijay account. बिल क्लब मेरे भाई लोग. कॉमन डेटर. अरे मेरे को बोलने तो. कॉमन डेटर. अरे कैश अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट, इट इज 900 रुपीज. इतना पैसा आया. और बैड डेट्स टू विजय, वो पैसा नहीं आया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस. स्टिल वी आर गिविंग क्रेडिट टू विजय. व्हाई? वी वांट टू शट डाउन हिज अकाउंट. और मॉडर्न कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, एसेट डिक्रीजेस. पैसा आ गया तो भी एसेट डिक्रीजेस, पैसा नहीं आया, बैड डेट्स हो गया तो भी एसेट डिक्रीजेस. विजय कम हो गया. समझ में आई बात? तो अभी क्लब करना है इसको, क्योंकि कॉमन क्रेडिट है. यस, यू आर वेरी राइट. तो अभी इसको कंबाइन करते हैं. तो व्हाट विल बी द कंबाइंड एंट्री? Cash account debit to bank account. बैंक. Bad debts account debit to Vijay account. टू विजय अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट. समझ में आ रहा है ये? हीत को समझ में आ रहा है? हीत का मेरे को खाली बाल दिख रहा है, मुंडी दिखी नहीं. यस सर. समझ में आ रहा है हीत को? हाँ सर. चलो. कशिश, रियल गंगर, निका देसाई. देखो, कैश बैड डेट्स टू विजय. ओके, कैश में कितना अमाउंट आएगा, कितना रोकड़ा मिला गांधी बापू? 900. बैड डेट्स कितना मिलेगा? आपने बैड डेट्स मिला नहीं है, सॉरी, लॉस हो गया. बैड डेट्स अपना लॉस हो गया 2100 का. टू विजय अकाउंट डेटर 3000 से कम हो गया. अभी कोई पैसा आने की उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं रखी, हमने डेटर का अकाउंट बंद करके छोड़ दिया. वी क्लोज्ड डाउन द डेटर अकाउंट. ओके, बीइंग कैश रिसीव्ड and bad debts record. Being cash received and bad debts recorded. Being cash received and bad debts recorded. So that's your 28th one. अब मुझे सोच के बताना, थोड़ा अच्छे से दिमाग लगा के बताना. विजय से अभी कुछ लेना देना बाकी है कि खत्म? खत्म. क्या तुम आस लगाए बैठे रहोगे अपने बिजनेस के दरवाजे पे सर पकड़ के कि कभी तो विजय आएगा 2100 लेके, तब मैं उसका स्वागत करूंगा वरमाला पहना के? ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, वो कुछ पैसा वैसा लाने वाला नहीं. हम तो ऐसे ही समझ रहे हैं, क्योंकि हमने तो क्या किया, देखो, जो कैश दिया उसके लिए भी उसको क्रेडिट दे दिया, कम हो गया डेटर. और जो बैड डेट्स हुआ उसके लिए भी क्रेडिट दे दिया, कम हो गया डेटर. हमारे लिए वो डेटर खत्म हो चुका है. हमें उस डेटर से कुछ लेना देना बाकी है कि नहीं है? नहीं है रेखा गांधी, बराबर है. अभी पढ़िए आगे 29th वन. व्हाट इज गिवन? विजय an amount of 200 previously written off as bad debts now recovered. Amount of 200 previously written off as bad debts recovered. Now recovered. Cash account debit. Cash account debit to bad debts recovery account debit to bad debts. देखो, अभी ये बैड डेट्स प्रीवियसली कभी तो राइट ऑफ हो चुका था. कोई तो डेटर था जिसने पैसा नहीं दिया, हमने उसका अकाउंट बंद किया, खादू पीदू राज की. तुझसे हमारा रिश्ता टूट गया है. ओके, अभी तू हमारे लिए कोई डेटर नहीं रहा. हमने उसको बंद कर दिया था, हमने कोई उम्मीद नहीं रखी थी, हम बैठे थे अपना बिजनेस कर रहे थे. सडनली उसकी अंतरात्मा जागी, वो आया और हमें पैसे देके के चला गया. बोला सर जी आपके पिछले पैसे रखो. मैं तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बैड डेट्स का कुछ पैसा आएगा, राइट? बट सडनली आ गया, तो आई विल ट्रीट इट लाइक एज अ न्यू इनकम, अ विंडफॉल गेन, अ लॉटरी. Are you getting this? It's like a lottery for me. So
like a new income. What is that income called? That income is called bad Bad debt debts recovered. recovered या recovery. Bad debts recovered account या bad debts recovery account. So just like we receive rent, what entry you pass when you receive rent? Rent account debit to cash. Land. डोंबिवली और Cash account debit to cash rent. account debit Cash account debit to rent. Cash account debit to to rent rent account. received account. कैश अकाउंट डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन रेंट इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स हेलो 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 तो वैसे ही बैड डेट्स रिकवरी इज आल्सो अवर इनकम लाइक अ न्यू इनकम सो एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट पैसा आया टू व्हाट बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट या बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज दैट क्लियर cash account debit to bad debts recovery या cash to bad debts recovered what will be your amount कितना पैसा आया 200 अच्छा ये bad debts किसी से भी आए याद रखना बंधुओं क्या बोल रहा हूं ये bad debts किसी से भी आए अजय से आए विजय से आए संजय से आए राम से आए अशोक से आए कोई भी बंदा आके ये bad debts का रिकवरी का पैसा दे के जा रहा है वी आर नॉट बॉदर्ड किससे आ रही है इट इज अवर इनकम याद है हमने किया था रिसीव्ड रेंट कैश एंड रेंट रिसीव्ड रेंट फ्रॉम राम इट इज स्टिल कैश एंड रेंट रिसीव्ड रेंट फ्रॉम अजय इट इज स्टिल कैश एंड रेंट सेम वे whenever you recover bad debts your entry is cash to bad debts recovery it is cash to bad debts recovery या cash to bad debts recovered पढ़ कि नहीं समझ में आया सबको लिखना क्या लिखोगे नरेशन में being bad debts recovered being bad debts recovered being bad debts recovered understood all of you clear okay that was your 29th one पिछला बैड डेट्स हो गया अकाउंट बंद अभी कोई भी रिकवरी हो रही है तो लाइक योर न्यू इनकम यू हैव टू ट्रीट इट लाइक योर न्यू इनकम ओके नाउ लेट्स प्रोसीड विद द 30th one okay let's see the 30th one what is given purchased 50 shares of Reliance for 1000 rupees each and paid brokerage 2%. अब ये शेयर्स कौन खरीद रहा है बिजनेस खरीद रहा है कि ओनर खरीद रहा है बिजनेस कुछ नहीं दिया तो भैया बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है यशवी को समझ रहा है बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है यशवी का मेरे को खाली सर का भी कपाल दिख रहा है थोड़ा नीचे रखो आई शुड सी योर फेस ऑल ऑफ यू ऐसा रखता है कि मेरे को खाली बाल और टोपी और पीछे का टीवी दिखाई देता है come on focus on your face and all come on कैमरा तुम्हारे शक्ल पे होना चाहिए और जो लोग का बंद है सेलिब्रिटी लोग वीडियो ऑन करो नहीं तो बाहर जाओगे come on videos on now 30th one read what have they given purchase 50 shares of Reliance of 1000 each and paid brokerage 2%. Business ने shares खरीदा है भैया. What are shares? What type of account are shares? Investment. Are these expense or are these assets? Assets. Asset. क्यों करते हो invest shares में? Why do you invest in shares? So that we earn income. So that आपको डिविडेंड की इनकम मिले फ्यूचर में आपको डिविडेंड की इनकम मिले राइट है ना इसीलिए करते हो या तो फिर आप बेच के पैसे कमा सकते हो ज्यादा भाव बढ़ेगा तभी राइट तो शेयर्स आर योर इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर योर एसेट्स राइट और एक चीज मैंने बताई थी आपको याद होगा तो ये जो शेयर्स होते हैं या जो बॉन्ड या डिबेंचर होते हैं जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ये सभी ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू होते हैं कि चेक के थ्रू होते हैं बैंक के थ्रू होते हैं चेक के थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू होते हैं राइट तो हमेशा रिमेंबर व्हेनेवर यू बाय शेयर्स ओके दिस इज अ थंब रूल व्हेनेवर यू बाय शेयर्स you will get shares are assets and money will go out bank पैसा जाएगा okay and whenever you sell shares will go out
एंड मनी विल कम इन, बैंक, पैसा आ जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, कैन यू बाय एंड सेल शेयर्स ऑन क्रेडिट बेसिस? इज इट पॉसिबल to buy and sell shares on credit basis? Not totally. Half credit, half cash. A little bit of cash has to be. It's always on cash. Always on cash. It can never be on credit. मुझे एक बात बताओ, आप इन्वेस्ट करते कब हो? Sorry, जब हम लोग कैश उसमें डालते हैं, जब आपके पास एक्स्ट्रा कैश होता है, जब आपके पास एक्स्ट्रा कैश होता है, आपको वो कैश देना है और वो इन्वेस्ट करके रखना है, राइट? तो आप कभी कोई भी इन्वेस्टमेंट लोगे ना, वो कैश में ही खरीदते हो, कभी भी क्रेडिट पे पॉसिबल नहीं है। मतलब आप हमेशा बैंक से ही पैसा दे दोगे उसको। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट्स अ थंब रूल। व्हाट इज अ थंब रूल? वो तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड वाला थंब रूल नहीं, ओके? ये वाला थंब रूल। ये थंब रूल क्या बोलता है आपको? ये बोलता है कि आपका कभी भी इन्वेस्टमेंट आप खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड पैसा जाएगा, क्रेडिट द गिवर, बैंक से जाएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट बेचोगे तब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पैसा आएगा, डेबिट द रिसीवर, बैंक में ही आएगा। रोकड़े में कभी नहीं होता, कैश में कभी नहीं होता ये डीलिंग, हमेशा बैंक के थ्रू होता है। इज दैट क्लियर? अभी पढ़ो यहाँ पे, purchased 50 shares of Reliance of 1000 each and paid brokerage 2%. Can you see that brokerage of 2%? What is a brokerage? Investment only. Yeah. To the broker. We have to add the expense. हाँ, ब्रोकर को पे करना पड़ता है। पता है ब्रोकर? पता है आपको? Who is a broker? Who helps us between us and the company. हाँ, वो अपने को हेल्प करता है, शेयर्स को सेल बाय करने में हेल्प करता है, मिडल मैन होता है। आपने देखे हैं कोई ब्रोकर्स? हाँ। कहाँ देखे हैं? हाउस ब्रोकर, मार्केट, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट तो बहुत बड़ा मार्केट होता है, उसमें ब्रोकर कहाँ दिख गया आपको? BSE, NSE. हाँ, BSE, NSE are the biggest brokers. BSE, NSE are the biggest brokers. They are the middleman, actual middleman. बराबर? आपने और अपने लोकेलिटी में देखा होगा LKP सिक्योरिटी, श्याम एंड सिक्योरिटी, फिर अपना एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, ये देखा होगा सब अपने नाम आजू बाजू में, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज, देख रहा है? ऑल दीज आर ब्रोकर्स, ऑल दीज आर ब्रोकर्स। ये लोग क्या करते हैं, ये देखो, आप घड़ी घड़ी BSE में तो नहीं जा सकते ना, BSE की बिल्डिंग किधर है? साउथ मुंबई, नरीमन पॉइंट, उधर तो जाके नहीं ले सकते, घड़ी घड़ी शेयर्स बेच नहीं सकते, तो उनके साथ ये सब ब्रोकर कनेक्टेड होते हैं। तो आप इन ब्रोकर्स को अपने शेयर्स दोगे और वो आपको बेच के पैसा दे देगा। तो ब्रोकर इज अ मिडल मैन, ओके? तो ब्रोकर का काम क्या होता है? बायर एंड सेलर को कनेक्ट करना। ही विल कनेक्ट द बायर एंड सेलर एंड उसको कमीशन मिलेगा, दोनों से कमीशन मिलता है ब्रोकर को, ओके? बायर से भी उसको 2% मिलेगा, सेलर से भी उसको 2% मिलेगा, बायर से भी उसको 1% मिलेगा, सेलर से भी उसको 1%। इज दैट क्लियर? But nowadays there are many brokerages who are doing this dealing and all. They are providing some services free of cost. Okay, like Zerodha है, Zerodha का brokerage सुना है? Zerodha का नाम सुना है? Zerodha is a new broker. Upstocks is a new broker. Okay, Upstocks, Zerodha, ये लोग इन्वेस्टमेंट्स पे 0 ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। मतलब अगर आप आज खरीद के रख रहे हो, इमीडिएटली नहीं बेचना है आपको, तो फिर 0 ब्रोकरेज। ओके, ट्रेडिंग करोगे तो आपको ब्रोकरेज मिलेगा, घड़ी घड़ी बाय सेल करोगे तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। बट अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो तो आपको 0 ब्रोकरेज। ऐसे भी ब्रोकर होते हैं, तो उनको से ब्रोकरेज मिलता है बायर और सेलर से। तो यहाँ पर व्हाट आर वी डूइंग? टेल मी, आर वी बाइंग शेयर्स और आर वी सेलिंग शेयर्स? बाइंग शेयर्स। तो पहले तो कैलकुलेशन पे ध्यान दो, सब लोग ध्यान से देखो क्या हो रहा है। We are buying 50 shares of 1000 each, correct? That comes to 50,000 rupees. Agree all of you? 1000 रुपए के 50 शेयर्स लिया, 50,000 रुपए हो गए। अब शेयर्स मेरा क्या है? एसेट है, अग्री? और मैं उस पर ब्रोकरेज भी पे कर रहा हूं 2%। तो ब्रोकरेज कितना हुआ बता सकते हो मुझे? ब्रोकरेज 2%, 1000
50,000 पे 2% देना पड़ेगा ब्रोकर, तो 1,000। तो मेरा टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 51,000। अभी मुझे सोच के बताओ, विल आई शो दिस ब्रोकरेज एज अ सेपरेट एक्सपेंस और शुड आई एड इट टू द कॉस्ट ऑफ शेयर्स? Added to the cost. Why add it to the cost concept? Cost concept click हुआ? Whenever you buy any long term asset, a fixed asset or an investment, जब बड़ा एसेट कोई खरीदते हो लॉन्ग टर्म वाला, उस पे जो भी खर्चा होता है उसको क्या करने का? एड अप टू द कॉस्ट। इज दैट क्लियर? तो आपका टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज नॉट 50, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 51,000। अब मुझे आराम से जरा सोच के एंट्री बताना इसकी क्या होनी चाहिए। सर 2% में 1,000 कैसे? इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स ऑफ रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक मिनट 2% में 1,000 कैसे आया? ये देखो ना, 50,000 रुपए के शेयर्स खरीदे ना, तो 50,000 का 2%। करो कैलकुलेट, 50,000 into 2 upon 100, 1,000 रुपीज है ना। ब्रोकर की तो चांदी होती है, आप जितने वैल्यू के शेयर्स खरीदोगे बेचोगे उसको ब्रोकरेज मिलेगा, और जितना ज्यादा खरीदोगे जितना ज्यादा बेचोगे उतना उसका फायदा, जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतना उसका फायदा ब्रोकर का। इसलिए कभी भी ज्यादा ट्रेड नहीं करने का। You should buy the shares and keep it for long periods of time. Then the wealth accumulates. Okay? I'll give you a simple सा example. अगर आपने Infosys नाम की एक कंपनी है, पता है आपको Infosys का नाम सुना? Infosys टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर IT कंपनी है। अगर आपने उसके शेयर्स 1995 में खरीद के रखे होते, 100 रुपए के शेयर्स खरीद के रखे होते, कितने? 100, जस्ट 100 रुपीज के अगर आपने शेयर्स खरीद के रखे होते इन द ईयर 1995, ओके, आज के डेट में उसका वैल्यू कितना हो चुका होता पता है आपको? 100 रुपीज का। कोई गेस कर सकता है? 2,50,000। 100 rupees would have become 2,50,000 rupees. तो अगर आपने 1,000 रुपीज रखा होता तो 25 लाख। और अगर आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया होता तो 2.5 करोड़। आपने अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया होता तो 25 करोड़। In a company like Infosys, okay, like that there are many companies, not only Infosys, there is Reliance का शेयर जब IPO आया था 1970, that time it was of 10 rupees. Reliance का शेयर in 1998 was of 10 rupees. कितने का था? 10 rupees का था। और अब वो 10 rupees के शेयर की वैल्यू प्रेजेंट डे कितनी हो चुकी है बता सकते हो? 10 रुपीज के शेयर की वैल्यू कितनी हो गई पता है? 800 रुपीज। 10 रुपीज का शेयर का वैल्यू अभी कितना हो गया? In lakhs. इट इज 10 रुपीज का शेयर, एक शेयर 10 रुपीज का जो था उसका वैल्यू अभी 8,000 रुपीज हो गया। 8,000 रुपीज 10 रुपीज का। तो अगर आपने 100 रुपीज डाला होता तो 80,000, आपने 1,000 रुपीज डाला होता तो 8 लाख, 10,000 डाला होता तो 80 लाख और 1 लाख डाला होता तो 8 करोड़ रुपीज। ओके, मम्मी पापा को बोलोगे ना घर पे जाके क्यों नहीं डाला? रिग्रेट फील होता है, मेरे को भी होता है, बट सैडली वी कांट डू अबाउट इट एनीथिंग। ओके, यू नेवर नो विच कंपनी विल डू गुड, विच कंपनी विल डू बैड, इसलिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, इसके पीछे थोड़ी रिसर्च जाती है अच्छी कंपनीज की। Okay. So, do companies have a downfall and then they grow again, sir? Many companies have downfall and they grow again. Okay. Reliance also had one, right? Reliance also had falls, but over the period of time, I'm telling you. That's why public क्या करता है? खरीदता है, डाउनफॉल में बेच देता है, वापस खरीदता है, वापस डाउनफॉल में बेच देता है।
डर लगता है। तो अगर आप अच्छे कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रखते हो तो योर वेल्थ अक्यूमुलेट्स। यू शुड नीड जस्ट नीड टू बी पेशेंट। यू नो वॉरेन richest person in the stock market, Berkshire Hathaway का ओनर वॉरेन बफेट का नाम सुना है? He has made all his money in stock market. उसने क्या बोला है पता है? अंबानी उससे आगे गया। अंबानी अभी उससे आगे गया, yeah. But he was since for 40-50 years he was the second or the first richest man of the world. What quote he has said about stock market, you know? He has said two things. Even if you know 4th standard maths, you can invest in stock market. Even if you know 4th standard maths, you can invest in stock market. Stock market is not a difficult thing to learn and invest. And second and most important thing he has said, stock market is a tool of transferring the money from the impatient to the patient. Stock market is a tool for transferring the money from the impatient to the patient. मतलब अगर आप पेशेंस से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। बट आप इम्पेशेंट घड़ी घड़ी आधे लीधु काले वेची ना को अपना गुज्जू भाई करता है ना रोज फोन पे, अभी देखने का 9 o'clock को सुबह जाके सत्यम में सब घूमता रहता है कॉरिडोर में, तो 25वां वेचू, 40वां लीधु, 40वां लीधु, 50वां वेचू, एंड ऐसा ट्रेडिंग करते रहेगा ना, यू आर नेवर गोइंग टू मेक मनी। ओके, keep that in mind. And 90% of the people do trading only and they lose money. Only 5 to 10% make money in the stock. Okay? There are a lot of things to learn about it. When we pay a brokerage, is it only when we, like, if we've kept the shares for a long time, do we have to pay brokerage every year, or it is only for only when we buy and only when we sell? It is just once, buy and when we sell. That's it. Every year कुछ नहीं. Every year कुछ नहीं. Just buy and sell के बाद. Okay? तो coming back to our, अभी हम लोग ने शेयर्स खरीदे हैं रिलायंस के 51,000 के. ओके, कॉस्ट 51 कैसे हुआ समझ में आया सबको? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 50,000 प्लस 1,000 ऑफ ब्रोकरेज, एड अप टू द कॉस्ट, कॉस्ट कंसेप्ट. एसेट आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, नाम क्या लिखोगे? नाम लिखने का इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की बैंक अकाउंट. बोलो मेरे को, व्हाट विल यू राइट? Why बैंक? चेक के बारे में तो कुछ दिया नहीं है. Still, why will you write bank? Shares always bank. हाँ, shares, bonds, transaction always through bank. Always through bank. तो आपने 51,000 का शेयर खरीद के रख लिया. Being 50 shares of Reliance purchase या shares of Reliance purchase. Shares of Reliance purchase. इसमें किसी को कंफ्यूजन लगता है कि रिलायंस का नाम आना चाहिए, तो बी वेरी क्लियर. आप कोई भी कंपनी का शेयर्स खरीदो, बॉन्ड्स खरीदो, डिबेंचर खरीदो, कंपनी का नाम कभी भी नहीं आने वाला. ओके, इट इज ऑलवेज अ कैश ट्रांजैक्शन. इन्वेस्टमेंट आया, पैसा गया, सिंपल एज दैट. आप जैसे फर्नीचर खरीदा, पैसा दिया, मशीन खरीदा, पैसा दिया, वैसे शेयर्स खरीदा, पैसा दिया. इज दैट क्लियर? हेलो, ईशा जी को समझा? जिया, ईशा, माया, गर्गी, जैनम, क्रेश, यशराज, बढ़े आगे. यस. 31st वन क्या दिया है, पढ़ो. सोल्ड द अबाउ शेयर्स फॉर ₹1500 ईच एंड पेड 2% ब्रोकरेज. देखो भाई ने फटाफट बेच भी दिया. सोल्ड द अबाउ शेयर्स फॉर 1500 ईच, 1000 में खरीदा, 1500 में बेच दिया. 10-20 साल रुकता तो कितना ज्यादा पैसा मिलता है, बट पेशेंस नहीं था. ओके, 1000 में खरीदा, 1500 रुपीज में बेच दिया. अभी देखो आप लोग सेल कर रहे हो, बराबर, अबाउ शेयर्स, तो वही 50 शेयर्स आप बेच रहे हो. कैन आई से? तो सेल करते वक्त सेल वैल्यू कितना होगा आपका? 50 शेयर्स इंटू 1500, तो कितना होता है? 75,000. आपने 50 में खरीदा हुआ था, 51 में एक्चुअली, वो 75 में बेच रहे हो. अब वापस ब्रोकरेज है. अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, देखो क्या होगा. जब आप बेचोगे तब 75,000 जो आपको मिल रहा है ना, वो पूरा 75 हाथ में नहीं आएगा, बीच में वो ब्रोकर काट लेगा 2% अपने.
तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा ना आपको, है कि नहीं? So takes while selling also and while taking also. हाँ, broker is a middleman. I told you, he gets commission from both the parties, buyer as well as seller. Remember? So सुनो अभी ध्यान से, कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? जब आप कोई एसेट खरीदते हो और कोई खर्चा हुआ है तो आप क्या करते हो? ऐड कर देते हो कॉस्ट पे। वैसे ही बेचते वक्त, एसेट को बेचते वक्त अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो क्या करने का? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेल, माइनस फ्रॉम द सेल वैल्यू। क्यों माइनस? क्यों माइनस? ये समझ में आ रहा है क्यों माइनस? Cost concept. Will you get 75,000? No, because some amount. हाँ, ब्रोकर काट लेगा ना, कितना काटेगा? 2%. So calculate 2% of 75,000 कितना? 1,500. 1,500. तो कितना बचा? 73,500. ओके, अब एक और चीज का ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ, आपने ये शेयर 73,500 में बेचे हैं। अभी देखो 75 को भूल जाने का, ये कहीं अलग से रिकॉर्ड नहीं होने वाला। आपका सेल वैल्यू 73,500 ही है। इज इट क्लियर? जैसे आपका परचेज वैल्यू 51 था ना विथ ब्रोकरेज, वैसे आपका सेल वैल्यू 73,500 है विथ ब्रोकरेज। नेट अमाउंट लेने का, ब्रोकरेज का एंट्री अलग से आएगा कि नहीं बताओ मुझे। विल यू हैव अ सेपरेट एंट्री फॉर ब्रोकरेज? नो, वन टाइम हो रहा है, एसेट में ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। अभी आपने प्रॉफिट किया कि लॉस? प्रॉफिट। अच्छा, विल यू प्रॉफिट? Yes. Yes or no? Yes, profit on sale of share. Profit on sale कल हमने कितना याद है? फर्नीचर 10 का 12 में बेचा था 2,000 प्रॉफिट, मोटर कार 5 का 8 में बेचा था 3,000 प्रॉफिट। याद आ रहा है? वैसे ही शेयर्स आप बेच रहे हो, अभी पूरा एंट्री फ्रेम करके बता सकते हो विथ प्रॉफिट क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट गया एंड पैसा आया, बैंक अकाउंट 500। बैंक डेबिट होना चाहिए क्रेडिट? डेबिट। बैंक अकाउंट शुड बी डेबिट। Debit. बैंक में आया पैसा, डेबिट द रिसीवर। और शेयर्स क्या होना चाहिए? क्रेडिट। शेयर्स क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट जा रहा है। सो टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट क्रेडिट। और क्या किया? प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। तो क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अब आराम से सोच के बताओ, बैंक में पैसा कितना मिला? 70,500 मिला। कैन यू सी दैट? लेकिन 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 शेयर्स कितने का गया? 51,000। कैन यू सी दैट? 51,000 का शेयर्स गया आपका। कॉस्ट था 51, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 22,500 का प्रॉफिट हो गया। दिस इज हाउ यू रिकॉर्ड इट। तो आपको बोलेगा नहीं कॉस्ट, आपको पता होना चाहिए कि इसका कॉस्ट 51 था, ऊपर से देख। तो 51 का आपने 73,500 में बेच दिया, 22,500 का प्रॉफिट। तो बीइंग शेयर्स सोल्ड एट प्रॉफिट, बीइंग शेयर्स सोल्ड एट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट इट? समझ लो कि नहीं? Yes. अभी नेक्स्ट वाला देखो, ऑन द सेम लाइन। Why did we record the profit? Because these are assets. Assets का परचेज सेल रोज होता है कि रेयरली होता है? रेयरली। गुड्स का परचेज सेल रोज होता है, इसलिए उस पे कभी प्रॉफिट लॉस नहीं करने का, उसका प्रॉफिट लॉस ईयर एंड पे एक साथ ढूंढने का। बट एसेट का तो बहुत ओकेजनली होता है, 5-10 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल में एक बार। तो उस पे हमेशा यू रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस, जैसे हुआ वैसे कर दो, उसको वेट मत करो आप, ये साल में एक ही बार होने वाला है वो। इमीडिएटली शो द प्रॉफिट और लॉस। इज दैट क्लियर? तो एसेट पे इमीडिएटली दिखाने का, गुड्स पे नहीं दिखाने का, कीप दैट इन माइंड। देन नेक्स्ट वन, परचेज्ड 20 shares of 100 each and paid brokerage 2%। देखो 20 शेयर खरीदा है 100 रुपए का, तो कितना होता है? 2,000। All of you got that?
20 shares into 100, 2000, and 2% brokerage. Tell me, am I supposed to add brokerage or subtract brokerage? Add. Pakka add? Expense incurred on purchase of asset will be added up to the cost, right? So add brokerage 2%. कितना होता है ये? 40 rupees. So 2040. 2040 rupees. Is that clear? 2% brokerage add कर लिया तो that is 2040. So what is my total cost of shares? Is it 2000 or 2040? 2040. 2040. Did you all understand that? Yes. किसी को बाउंसर जा रहा है तो टेल मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन. एसेट खरीदा कल किया था ना, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, जो भी खर्चा हो रहा है एसेट को खरीदने पे एड अप टू द कॉस्ट. वरुण भाई को क्लियर? नाउ ब्रोकरेज 2040 के साथ हो गया शेयर्स का 2040. अभी मुझे बताओ एंट्री क्या होगी? यू आर बाइंग शेयर्स, राइट? यू आर बाइंग शेयर्स. So what will be your entry? Investment in shares. Investment in shares account. Investment in shares account debit. Debit what comes in? जैसा फर्नीचर खरीदते वैसे आपने शेयर्स खरीदे. टू बैंक. कैश क्यों नहीं लिखना है? समझ आ गया सबको? शेयर्स वगैरह की सभी डीलिंग किसके थ्रू होती है भैया? बैंक के थ्रू होती है. कुछ भी कैश के थ्रू नहीं होती. तो हमेशा चेक के थ्रू होती है, बैंक के थ्रू होती है. हितांशी को समझ रहा है? देन अमाउंट क्या लिखोगे? 2040 या 2040? 2040. प्रीत वोरा, इज दैट क्लियर? 2040. अर्शिता. नाउ बीइंग शेयर्स परचेज. बीइंग शेयर्स परचेज. अभी आपने रिलायंस के खरीदे की, टाटा के खरीदे की, विप्रो के खरीदे, कोई भी शेयर्स खरीदे, विल योर एंट्री चेंज और इट विल रिमेन सेम? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, एसेट इज कमिंग इन, पैसा जा रहा है, क्रेडिट द गिवर, बैंक से जा रहा है. समझा? अभी नेक्स्ट वाला देखिए क्या दिया है. 33rd. Sold 10 shares from the above for 1 each and paid brokerage 2%. Sold 10 shares from the above. पहले तो 10 शेयर्स बेचे हैं 150 ईच. तो कितना पैसा मिला? 1500 रुपया, राइट? 10 shares of the above are sold for 150 each, तो 1500. बट मुझे एक बात बोलो, will you receive 1500 in hand, अमया जी? क्या आपको 1500 रुपया हाथ में आ जाएगा डायरेक्टली? क्या होगा? ब्रोकरेज ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट. परचेज करते वक्त ऐड, सेल करते वक्त सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ब्रोकर उतना पैसा काट लेगा ना. तो ब्रोकरेज 2% माइनस कर दो आप, कितना होता है? 30 रुपीज. तो आपको हाथ में कितना पैसा मिला? 1470. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? दियांशी को समझ रहे हैं? 1470 is the net amount you are getting, right? Okay, now tell me, what is your actual sale value of shares? What is your actual sale value of shares? Is it 1500 or 1470? 1470 है. Agree all of you? 1470 है. अच्छा, 1470 is the sale value. Okay? और खरीदा कितने में था? Is your purchase 1020. Can you take 2040? No. We are selling only why? Because you half the share. Yes, true. तो हाफ अगर बेच रहे हो तो आपको कॉस्ट भी कितना करना पड़ेगा? हाफ. तो बेसिकली आपने 1020 का 1470 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट ऑफ 450. 450 का प्रॉफिट हो गया. ये समझ में आया? अभी ट्राई टू फ्रेम द फुल एंट्री विथ प्रॉफिट, जैसे आपने ऊपर किया है. क्या होगा एंट्री? बैंक अकाउंट debit in shares account debit profit on sale of shares account debit. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट. ये इसको वापस डेबिट मत करना. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वो क्रेडिट हो रहा है टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स अकाउंट.
to profit on sale of shares account. Is that clear? अभी एकदम दिमाग लगाना, चाणक्य बुद्धि वापरना और बताना बैंक में कितना रखोगे अमाउंट. 1470. 1470. Why not 1500? Because we paid brokerage to the share. 30 rupees cut हो गया. Will you say brokerage as a separate? No. No. Directly subtract from the sale value. Okay. Assets के लिए जब भी हो रहा है साथ में कर देना. खरीदते वक्त कोई खर्चा हो रहा है ऐड कर दो, बेचते वक्त कोई खर्चा हो रहा है सबट्रैक्ट कर दो सेल वैल्यू. तो बैंक में आएगा 1470. शेयर्स में कितना आएगा? 1020. कितने का गया? 1020 का. दिख रहा है ये 1020. आधा शेयर्स बेच दिया आपने. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड प्रॉफिट कितना हुआ? 400 एंड बीइंग शेयर्स sold at profit. Being shares sold at profit. All right. Is that clear? 34th वाला देखो एकदम ध्यान से क्या हो रहा है जरा देखो. 34th को देखो देखो देखो. The balance 10 shares were sold for ₹50. Network issue. Yeah. The balance 10 shares were sold for ₹50 each and brokerage paid 2%. Balance 10 shares are sold at ₹50 each. देखो ये ट्रेडिंग का नतीजा. भाई गाय गाय में बेचने गए. पहले 10 शेयर्स कितने में बिके? 150 में. लेकिन दूसरे 10 शेयर्स कितने में बिके? ₹50 में. तो इधर मैं लिख रहा हूँ 10 into 50 कितना होता है? 500. 10 into 50 is 500. वापस ब्रोकरेज. बोलो अभी बेच रहे हो कि खरीद रहे हो? बेच रहे हो. तो ब्रोकरेज क्या करोगे? ऐड की सबट्रैक्ट? माइनस. तो माइनस ब्रोकरेज 2%. कितना होता है? 10 रुपीज. तो नेट अमाउंट हाथ में कितना आएगा? 490. 490 is your net sale value. अग्री? अच्छा. अब सोच के बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? लॉस. 530 का लॉस हो रहा है. 530. कितने का लॉस हो रहा है? 530. 530. हाउ कम 530? देखो बेचा तुमने 490 में, लेकिन था कितने का ये? 1020 का था, लेकिन वो तो 20 शेयर्स थे, हमने 10 ही बेचे हैं, तो आधा कर लो. तो 1020 बराबर है. तो बेसिकली 1020 का आपने 490 में बेचा, तो भयंकर बड़ा लॉस हो गया. कितने का लॉस हो गया? 530 रुपए का लॉस हो गया. अभी देखो इमेजिन करो क्या हो रहा है. बिजनेस क्या कर रहा है? शेयर्स खरीद रहा है कि बेच रहा है? शेयर्स बेच रहा है. शेयर्स आर गोइंग आउट, गोज आउट, एंड मनी इज कमिंग इन. एंड लॉस हुआ कि प्रॉफिट? लॉस. डेबिट होगा कि क्रेडिट? लॉस क्या होगा? प्रॉफिट अपने आप देखो क्रेडिट हुआ है यहाँ पे. लॉस अपने आप डेबिट होगा. देखो मैं एंट्री में लिख रहा हूँ. बैंक अकाउंट डेबिट. लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट. सेल ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट to investment in shares account. To investment in shares account. Is that clear? Now. आराम से सोचना और बताना बैंक में कितना पैसा आया. 490. 500 आया कि 490 आया? 490. ब्रोकरेज का भी अलग से रिकॉर्ड नहीं करने का. ठीक है. लॉस को छोड़ दो फिलहाल. मेरे को बोलो शेयर्स कितने का गया? शेयर्स कितने का गया? 1020 का गया. आधा शेयर्स. ऑटोमेटिकली आपको डेबिट में गैप आएगा. दिख रहा है यहाँ पे? जब प्रॉफिट था ना तब ऑटोमेटिकली क्रेडिट में गैप आता, और जब लॉस होता तब ऑटोमेटिकली डेबिट में गैप आता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट इज द लॉस ऑफ 530 rupees? Correct?
नरेशन लिख देना, बीइंग शेयर्स सोल्ड एट लॉस, बीइंग शेयर्स सोल्ड एट लॉस। तो ये तीनों एंट्रीज वेर लिंक्ड। डिड यू अंडरस्टैंड द 3 एंट्रीज 32, 33 एंड 34? तीनों एंट्रीज वेर कनेक्टेड। ये बैठा तीनों के तीनों एंट्रीज दिमाग में? क्या किया हमने 32 में? 20 शेयर्स खरीदा और ब्रोकरेज पे किया, फिर 10 शेयर्स बेचा एट अ प्रॉफिट एंड देन 10 शेयर्स बेचा एट अ लॉस। Whenever you buy shares, simple mechanism, shares come in, paisa goes out, and whenever you sell shares go out, paisa comes in. बीच में लॉस या प्रॉफिट, you have to calculate and record. लॉस है तो डेबिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट। बोलो, समझा? Tell me, any doubt, any doubt, any doubt, any doubt, any doubt? No doubt. Try the next 35th वाला देखो क्या दिया। 35 paid ₹500 to Ram on behalf of Shyam। पहले भी एक बार किया, अगर किसी की याददाश्त तेज हो तो बताओ मुझे क्या होना। Paid to Ram on behalf of Shyam। Shyam account debit to cash। Ram to cash या Shyam to cash? Ram to Ram to cash। Ram to cash। Ram to cash क्योंकि हम लोग नाम से पे लेते हैं। देखो एग्जाम्पल याद करो, देखो एग्जाम्पल याद करो। मैंने शाम से गुड्स खरीदा था, मैं शाम के घर पैसे देने गया, शाम बैठा है दुबई में हॉलीडे मना रहा है। शाम ने बोला मेरा दोस्त राम है उधर बाजू में खड़ा है, उसको पैसे दे दो। तो मैं क्या करूंगा? मैं तो शाम को बोलूंगा देख भाई तू दुबई में बैठा है, इसके लिए मैं राम को पैसे दे रहा हूँ, लेकिन अपना अकाउंट सेटल। तो वी आर डीलिंग विथ हु एक्चुअली? राम और श्याम। श्याम इवनिंग इवनिंग श्याम राम नहीं श्याम, ठीक है? हमारा डीलिंग श्याम के साथ हो रहा है, उसके बिहाफ पे हमने राम को दिया, उसके बिहाफ पे किसी को भी दो। कल उसने उठ के अपने नौकर को भेज दिया, रामू उसका नौकर है, तो मैं क्या इधर रामू अकाउंट डेबिट टू कैश लिखूं? एम आई डीलिंग विथ रामू भैया? नो ना, आई एम डीलिंग विथ श्याम। तो कभी भी याद रखना, बिहाफ दिखे ना, बिहाफ, बिहाफ मतलब आप उसी बंदे के साथ डील कर रहे हो। देखो फिजिकल डील विथ इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। आर यू गेटिंग इट साहिल भैया? Understand the sense of the transaction, what is happening, okay? What is happening over here? You are paying to Ram but on behalf of Shyam। तो ऐसा मत सोचना कि राम को पैसा गया तो राम का अकाउंट खोल देने का, नहीं। We are dealing with Shyam, उसके साथ हम लोग डील कर रहे थे। अल्टीमेटली अपने पैसे उसी को जाने वाले हैं। तो श्याम इज द अल्टीमेट रिसीवर। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Shyam account debit to cash account 500 rupees। Shyam account debit to cash account 500 rupees being cash paid to Ram on behalf of Shyam। On behalf of Shyam। इस ट्रांजैक्शन में आपने गुड्स किससे खरीदे होंगे? श्याम से खरीदे होंगे कि राम से खरीदे होंगे? श्याम से खरीदे होंगे। तो श्याम को ही पैसे दे रहे हो आप इनडायरेक्टली। उसके बिहाफ पे किसी को भी दो, उसके मम्मी को दो, उसके पापा को दो, उसके पड़ोसी को दो, उसके भाई को दो, उसके बेटे को दो, उसके फ्रेंड को दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? तो नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए इसी लाइंस पे। पेड ₹100 टू राजा ऑन बिहाफ ऑफ बाबू। क्या होना चाहिए एंट्री? राजा बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश की राजा अकाउंट डेबिट टू कैश? बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश। किसी को लगता है राजा अकाउंट डेबिट टू कैश? तो अपने सिर पे टपली मारो, ओके? आपके घर पे जो आ जाएगा उसको पैसे दे दोगे और उसका अकाउंट ओपन कर दोगे, ऐसा नहीं चले, ठीक है? आप कोई तो लिख देता है राजा बाबू टू कैश, ऐसा नहीं करने का, ठीक है? इट इज ओनली बाबू, यू आर पेइंग ओनली टू बाबू। तो बाबू के
बाबू को ही बाबू से हम लोग डील कर रहे हैं, बाबू से गुड्स खरीदा होगा, अल्टीमेट पैसा उसी को जा रहा है। बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश, बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग कैश पेड टू राजा ऑन बिहाफ ऑफ बाबू, कैश पेड टू राजा ऑन बिहाफ ऑफ बाबू। Is that clear? All of you got that? That was 36th one. We have 37th one पे हम लोग रुक जाते हैं, लास्ट वाला, ठीक है। 37th one. Received ₹100 from Ajay on behalf of Vijay. Vijay account to cash. Account debit to Vijay account. विजय टू कैश या कैश टू विजय? कैश टू विजय। पैसा आ रहा है ना, व्हाट कम्स इन। इमेजिन भैया, कैश आ रहा है तो कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट, ₹100 being cash received from Ajay on behalf of Vijay, on behalf of Vijay। तो विजय कौन था? विजय से अपने को पैसा आया ना, तो विजय कौन था? was our debtor, right? तो हमने अजय का नाम क्यों नहीं लिखा, विजय का क्यों लिखा? Because we are not dealing with Ajay is paying to us, but it is Vijay who has actually to give to us. अल्टीमेटली विजय ने पैसा भेजा है, विजय ने अजय को बोला कि अपने को पे कर दे, बराबर है। तो अपना अकाउंट विजय के साथ ही है, अपना अकाउंट अजय के साथ कुछ है ही नहीं। समझ में आई बात? रिमेम्बर दिस। तो पे रिसीव्ड कैश फ्रॉम अजय ऑफ विजय, एंट्री क्या होगा? कैश टू विजय। बिहाफ वाला पार्टी इज इंपॉर्टेंट, बाकी पार्टी को इग्नोर करने का। इज दैट क्लियर? तो हियर वी स्टॉप। कोई डाउट्स देख लो जरा, गो थ्रू कर लो यहाँ तक के एंट्रीज, 2 minutes। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू टेल मी, you have any doubts you tell me फटाफट। Sir, I get confused in this behalf वाला sums। बिहाफ वाले में है ना, you just check किसके बिहाफ पे पे किया या किसके बिहाफ पे रिसीव किया। only that person you have to check, only that person is important। दूसरा पार्टी को इग्नोर मारने का। मैं बोलूंगा पेड टू अनिका ऑन बिहाफ ऑफ बंसी, पेड टू अनिका ऑन बिहाफ ऑफ बंसी, मतलब क्या हुआ है? मैंने बंसी से गुड्स खरीदा हुआ है, मैंने बंसी से गुड्स खरीदा हुआ है। तो बंसी के घर गया, बंसी थी नहीं, बंसी ने बोला अनिका को पैसे दे दे, तो मैंने बोला ठीक है मैं अनिका को दे देता हूँ, बट तुम्हारे कहने पे दे रहा हूँ, अपना अकाउंट सेटल। तो मैं तो ऐसे ही बोलूंगा ना कि बंसी को पैसे चलेगा मेरे हिसाब से। तो ऑन बिहाफ ऑफ बंसी, तो बंसी डेबिट टू कैश, बंसी इज द रिसीवर टू कैश। मैंने रिसीव किया है अमया से ऑन बिहाफ ऑफ पूजन, रिसीव फ्रॉम अमया ऑन बिहाफ ऑफ पूजन। तो अमया से पैसा लेकिन पूजन के बिहाफ, मतलब मैंने गुड्स किसको बेचा रहेगा? पूजन को। तो अल्टीमेटली किसके साथ अकाउंट सेटल होगा मेरा? पूजन के साथ। अमया तो कौन है? थर्ड पार्टी है, उससे तो मेरा लेना देना है नहीं। तो पूजन के बिहाफ पे आके मुझे पैसा देके गया। तो ऑन बिहाफ, कैश टू ऑन बिहाफ वाला का। एंड द अदर थिंग इज दिस वन के फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट क्या होता है? फुल सेटलमेंट जो पैसा लेना था सब खत्म, अभी कुछ बाकी नहीं रहेगा, तो मतलब डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट मतलब होगा, सॉरी उसका एंट्री किया ना हमने, होमवर्क अभी डिस्कस मैंने, होमवर्क सब में। I was late to the class. You were late. Okay. बताता हूँ, वेट। अभी पहले होमवर्क ले लो सब लोग, प्लीज टेक द होमवर्क। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कहाँ गया ये वाला, इन द बुक्स ऑफ गजानन। सर ये हो गया, गजानन हो गया, गजानन वाला हो। आपने अपनी में दिया था। 1 भी हो गया है, 2 भी हो गया है। हाँ सर हो गया। ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है फिर? होमवर्क देखो, आपको
क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है, रिवीजन एंट्रीज 12 के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 दिखा मिला? पेज अरे उसी के बाद वाला, ये अपना शीट का, ये वाला क्लास शीट अभी जो कर रहे थे ना। जनरल बेंचमार्क। हाँ जर्नल बेंचमार्क वाला शीट। अभी जो 12 सम हम लोग कर रहे थे, उसके बाद जो 13 सम दिख रहा है आपको, मिला? उसका 1 2 3 4 4 करना है, फर्स्ट 4 1 2 3 4 सम नंबर 13 कंटिन्यू करना है। सम नंबर 13 का नाम लिख के 1 2 3 4, ठीक है? इसमें मेरे को खाली बताओ थर्ड वाला कैसे करोगे। थर्ड वाला 1 2 3 4 में थर्ड वाला देखो क्या दिया है। परचेज मशीनरी ऑफ 10,000 फ्रॉम HMT एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ 1,000। Machinery account debit. Machinery account debit to cash account and machinery account would be 11,000. मशीनरी वुड बी 11, ये सबको समझ में आएगा क्योंकि इंस्टॉलेशन ऐड करना है। अब मुझे बात बताओ, इज एंटायर मशीन ऑन कैश क्रेडिट और पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट? That is not specified. That is specified. You read credit because partly cash, partly credit. हाँ, It is on credit. इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने पे कर दिया पर एक्चुअल किया, पर मशीनरी का कॉस्ट नहीं पे किया। देखो रीड, परचेज मशीनरी ऑफ 10,000 फ्रॉम HMT। तो HMT इज द बिजनेस का नाम, शॉप का नाम। तो HMT पार्टी का नाम दिया है और कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो जो मशीन आ रही है वो क्रेडिट पे आ रही है। और इंस्टॉलेशन एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस 1000, इंस्टॉलेशन चार्जेस के बारे में कुछ नहीं दिया है, पार्टी का नाम। तो दैट मींस यू हैव पेड इट इन कैश। तो मशीन 11,000 डेबिट, पूरा मशीन है 11 का, टू व्हाट? HMT एंड टू कैश कंबाइंड एंट्री। समझ में आई? मशीनरी अकाउंट 10,000 टू HMT अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिटर कितना आएगा 10,000 and to cash 1,000 for those installation charges. Is this clear? Partly cash, partly credit था, मशीनरी क्रेडिट पे था, इंस्टॉलेशन कैश में था। समझ में आया? That's it. So 4 सम होमवर्क है, आज शाम को भेज देना। ओके, कंटिन्यू करना 13 का 1 2 3 4 लिख के। If you have any doubts, you wait. Otherwise, you can leave. We'll meet tomorrow 9. Bye, sir. Thank you. Hi, sir. Bye bye. Hi, sir. Bye. Take care. So I had a question. Yes. There was a question on neon signboard. Yeah. In that we had written advertisement account debit to bank account. So can we write neon? Yeah, bank. It was to check था इसके लिए बैंक, बराबर। हाँ, तो can we write neon sign expense account debit to bank account? No, because neon sign is a type of advertisement only. That's why. But then neon when sign. you were doing the classification, you had given a separate account as nominal and expense for neon sign expenses. हाँ, वो है ना, तुमको खाली बताने के लिए कि वो एक्सपेंस है इसके अच्छा, लिए नॉमिनल। okay. बट नियॉन साइन बोलो या तुम्हारा ब्रोशर्स बोलो, कैटलॉग्स बोलो, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, रेडियो एडवर्टाइजमेंट, कार्ड होर्डिंग्स, ये सब विल बी क्लब्ड अंडर वन हेड, एडवर्टाइजमेंट। थैंक यू। ये कैसा होता है, ये कंसेप्ट मैं एक और एक्सप्लेन करूंगा, डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी। डिस्क्लोजर कंसेप्ट अपने को बोलता है कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोज करो, बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी आइटम है उसको ट्रू एंड फेयर व्यू से दिखाओ, जैसा है जैसा, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि आप जो डिस्क्लोज कर रहे हो अगर वो बहुत वैल्यूएबल है तो उसको अलग से सेपरेटली अच्छे से डिस्क्लोज करो। बट अगर वो आइटम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नहीं है, अभी वो इकोनॉमिकली तो डिपेंड फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, किसी के लिए 1,000 रुपया छोटा अमाउंट है, किसी के लिए 10,000 रुपया छोटा। तो अगर वो इकोनॉमिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको क्लब कर दो या उसको इग्नोर कर दो तो भी चलेगा। तो अभी किसी बिजनेस में नियॉन साइन के बहुत खर्चे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो नियॉन साइन अलग से अकाउंट हेड बना के दिखा सकता है और बाकी एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी अलग से दिखा सकता है। और किसी बिजनेस में नियॉन साइन का कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, इट गोज अलोंग विद द बिजनेस, then you can use
एडवर्टाइज दैट वे। सिमिलरली वो हमने सीखा था, याद है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कोई बिजनेस में प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा बहुत कम है, नेग्लिजिबल, तो आप सन्ड्री एक्सपेंस में डाल सकते हो। बट किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा है तो उसके लिए सेपरेट हेड दिखा देना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट सेपरेटली टू कैश अकाउंट। तो ये क्या थियोरेटिकल अजम्पशन है, तो इसमें आपको कभी स्टेशनरी दिख जाए, पोस्टेज, तो यूज सेपरेट अकाउंट। बट नियॉन साइन दिख जाए, पेंसिल पेन इरेजर शार्पनर दिख जाए, तो क्लब इट, वो स्टेशनरी, ये एडवर्टाइज। ऐसा है, थियोरेटिकल अजम्पशन है, प्रैक्टिकली तो यू नो व्हाट आई। थैंक यू। वेलकम। यस